السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، خطے کی صورتحال بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور پاکستان میں کنفیوژن ہے۔ پاکستان کی سرکار کو کنفیوژن اس بات کی ہے کہ پاکستان نے کھڑے کہاں ہونا ہے، جانا کہاں ہے۔ اگر فل فلیج وار ہو جاتی ہے تو پاکستان کو پوزیشن لینی پڑے گی، کیونکہ ابھی سعودی عرب نے پاکستان کو بہت پیسہ دیا ہے اور اس کے علاوہ امریکہ کا ایک دباؤ بھی پاکستان کے اوپر رہے گا، اور اسرائیل کی طرف پاکستان کا ایک جھکاؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے بورڈ آف پیس میں جانے کے بعد، تو پاکستان کو پوزیشن لینی پڑے گی۔ ایک کنفیوژن کے ماحول میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کے حامی جانے جاتے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ایران کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے ایران نے ہماری بے عزتی کروائی، ایران نے ہماری ناک نیچے لگوائی، ایران نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس قسم کے بیانات وہ لوگ دے رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل خود گئے لیکن ایران نہیں مانا۔ دیکھیں، ایران جنگ کے دوران نہیں مانا۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ حملہ کیا کس نے، آغاز کس نے کیا لڑائی کا آغاز کیا امریکہ نے اور ایران نے۔ آیت اللہ خامنائی جو سربراہ ہے مذہبی نوعیت کے ایران میں، سپریم لیڈر ہیں، انہیں قتل کس نے کیا؟ امریکہ نے اور اسرائیل نے۔ معصوم بچیوں کو پہلے ہی حملے میں قتل کر دیا گیا، بہت بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوا۔ اب یہ ساری چیزیں ہونے پر ایران نے سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے بہت مار کھائی لیکن سرنڈر نہیں کیا، بلکہ وہ جوابی کارروائی کرتے رہے۔ تو اب وہ صرف اس لیے سرنڈر کر دیں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ مطالبات زیادہ تسلیم کر دیں، حالانکہ بات بن گئی تھی، اور یہ جو بات بن گئی تھی اس کی گواہی پاکستان کے اندر اب بہت سارے صحافی آہستہ آہستہ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ جو پہلے بولنے سے ڈرتے تھے انہیں بھی اب زبان لگ گئی ہے، اور امریکن میڈیا خود بتا رہا ہے کہ یہ بات بن گئی تھی کہ ایران آبنۂ ہرمز کو کھول رہا تھا اس شرط پہ کہ امریکہ ناکہ بندی فوری طور پہ ختم کر دے گا اور باقی چیزیں مذاکرات میں جا کر طے ہو جائیں گی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ناکہ بندی کو ایک طاقت کے طور پہ استعمال کیا۔ اس وقت امریکی طاقت خطے میں کہاں کہاں جمع ہو چکی ہے اور کس طریقے سے وہ ایران کو گھیرا ڈال رہے ہیں، اس پہ میں آپ کو میپ پہ لے کر جاؤں گا، یعنی ہمیں ایک دفعہ پھر جانا پڑے گا میپ پہ، اور چلتے ہیں میپ پہ۔ جی ناظرین، تو یہ ہے میپ، اور یہ جناب امریکہ، اور یہ وہ ریجن ہے جہاں لڑائی چل رہی ہے یا جہاں پہ سارا پھڈا ہے۔ یہ آپ نے تھوڑا سا یاد رکھنا ہے کہ سمندر کون کون سے ہیں۔ صرف یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے ورلڈ میپ میں نے آپ کو دکھایا، پوری دنیا کا نقشہ ہے یہ، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ سمندر کون کون سے ہیں۔ اسے کہتے ہیں پرشین سی۔ یہ سمندر جو ہے نا، یہ عرب ممالک اور ایران کے بیچ میں۔ یہ عربین سی ہے، یہ انڈیا اور پاکستان کے سامنے، عمان کے سامنے یہ والا ہے، اسے گلف آف عمان بھی کہتے ہیں، لیکن یہ انڈین سی ہے۔ اور اس کے بعد یہ والا جو ایریا اس کو میڈیٹرینین سی کہتے ہیں۔ یہ تین سمندروں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ایک، دو اور یہ تین، اور یہ ریڈ سی ہے، یہ سعودی عرب اور افریقی ممالک کے بیچ میں ریڈ سی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے۔ یہ صرف آپ یہ نقشہ دیکھ لیں، اس کے بعد ذرا یہاں پہ آپ آ جائیں اور آپ کو ذرا کلیئر کر کے میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ جناب ایران ہے، یہ پرشین گلف ہے، یہ گلف آف عمان ہے، یہ بالکل چھوٹا سا ایریا ہے گلف آف عمان، یہ آبنۂ ہرمز، یہ اس کے بعد گلف آف عمان، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے امریکہ نے بلاکیج لگایا ہوا ہے پاکستان اور عمان کے بیچ میں۔ اور یہ والا جو سمندر کا بڑا حصہ ہے، یہ عربین سی بھی اس کو کہتے ہیں، انڈین اوشین بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ ایریا الگ ہے۔ یہ ریڈ سی ہے، یہاں سے نیچے سے یہ آپ کو باب مندب نظر آ رہا ہے، یمن کے بالکل ساتھ، افریقہ اور گلف ممالک کے بیچ میں، خلیجی ممالک اور افریقہ کے بیچ میں، یمن اور جبوتی کے کنارے پہ یہ ایک بیچ میں ایک ایریا ہے جس کو آپ کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو نشان لگا دیا، یہ والا ایریا اس کو آپ کہتے ہیں باب مندب۔ یہ ساتھ آگے شروع ہوتا ہے ریڈ سی، اور یہ سارا وہ میڈیٹرینین سی ہے جو جا کے یورپی ممالک کے ساتھ لگتا ہے۔ یورپی ممالک اس طرف آتے ہیں، یہاں اوپر ترکی ہے، نیچے مصر ہے، یہ شام ہے، اور یہ اسرائیل ہے، اور غزہ بھی وہیں پہ ہے۔ اب آ جائیں اس فائنل میپ کی طرف جو ساری حقیقت بتا رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اس وقت جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جہاز کہاں کہاں پہنچ گئے اور کس کس جگہ پہ امریکہ کے اڈے موجود ہیں۔ یہ جی عربین سی یا انڈین اوشین، ایک امریکی بحری جہازوں کا جو اڈا ہے وہ یہاں پہ ہے، وہ یہاں پہ انہوں نے بنا لیا سمندر کے اندر، اور یہاں پہ انہوں نے اپنی فوجی طاقت اکٹھی کر لی ہے عربین سی کے اندر یا انڈین اوشین کے اندر، اور یہ ایران کا یہ والا ایریا یہاں سے انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ دوسرا، عرب ممالک کو کراس کریں تو یہاں پہ ریڈ سی آ جاتا ہے، میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا۔ ایک امریکی بحری بیڑا وہ یہ یہاں پہ انہوں نے پہنچا دیا، یہاں پہ آ کے کھڑا ہے، اور اب جو امریکی بیڑا ایک اور آیا پیسیفک اوشین سے نکل کے وہ یہاں پہنچ گیا۔ یہ اسرائیل کی بیک سائڈ پہ یہاں پہ میڈیٹرینین سی کے اندر ان کا ایک بیڑا پہنچ گیا۔ تو یہ تین طرف سے انہوں نے ایران کو گھیرا ڈالا اس وقت تک۔ اگر لڑائی ہو جاتی ہے اور لڑائی بڑھ جاتی ہے، پاکستان اس وقت کنفیوز ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، لیکن پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی اکاؤنٹس ہیں یا جو قریبی لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یہ بات کرنا شروع ہو گئے کہ ایران نے زیادتی کی۔ یہ پہلے بھی کر رہے تھے، اور پہلے کچھ میسیجز بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی جانب سے یا ڈائریکٹ ان کی جانب سے صحافیوں کو بھجوائے گئے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کی مذمت شروع کرو۔ تو ہمیں یہ پتا ہے کہ جس وقت سعودی عرب دباؤ ڈالے گا، کہ بہت پیسہ دیا سعودی عرب نے، تو پاکستان کو پوزیشن لینی پڑے گی۔ تو یہ ایک اور سائیڈ ہو سکتی ہے جہاں سے کچھ دباؤ ایران کے اوپر بڑھایا جا سکے، لیکن پاکستان نہیں بھی کرے گا
तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। वजह यह है कि सऊदी अरब और सऊदी अरब का पैसा, अभी हमने यूएई का पैसा वापस किया, सऊदी अरब से लेके वापस किया, यहां से पैसा लिया, यहां पे वापस कर दिया। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, हमारे ऊपर पैसा उतना ही चढ़ा हुआ है, शायद उससे ज्यादा चढ़ गया है क्योंकि और कर्जा भी हम लेते चले जा रहे हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है खित्ते में जहां पे अमेरिका ने अपनी इतनी फौज लाकर इकट्ठी कर दी है कि इस फौज के साथ पूरी एक जंग लड़ी जा सकती। पहले इस रीजन में अमेरिका ने कभी इतनी ताकत इकट्ठी नहीं की जितनी अब की है। वापस चलते हैं मेन स्टूडियो में। तो नाज़रीन, आपने देख लिया मैप के जरिए से कि सूरत इस वक्त क्या है और मशरिक वस्ता में ईरान को कैसे घेरा पड़ा हुआ है। अब ईरान इस घेरे को कैसे तोड़ता है, उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके अपने इत्तेहादी हैं, उसका अपना एक तरीकाकार है चीजों को डील करने का, और उसके हथियारों की नौइयत भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज और खड़ा हो गया है। ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने में एक हफ्ता बाकी है। देखिए, जब भी कभी कोई जंग शुरू होती है तो अमेरिकी सदर बगैर इजाजत के कोई जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि वो 60 दिन में कांग्रेस से उसकी इजाजत ले या उसकी मंजूरी ले। अब कांग्रेस से मंजूरी लेने के लिए बाकी बच गया एक हफ्ता। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी आइन के तहत ये जो है वो यानी वॉर पावर रेजोल्यूशन जो है, ये एक अमेरिकी आइन है, कानून है, उसके तहत अमेरिकी सदर को अब ये इजाजत लेनी पड़ेगी और उसको हमायत दरकार होगी कांग्रेस की। एक हफ्ता बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप के नंबर तो ठीक है, लेकिन बहुत थोड़े मार्जिन के साथ। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में रुकावट आ जाती है और कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाते हैं, इसराइल की लॉबिंग बहुत अच्छी है अमेरिका में, वो कंट्रोल करते हैं अमेरिकन सिस्टम को, ये अमेरिकन खुद कहते हैं, तो उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप मंजूरी लेने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को यह मंजूरी नहीं मिलती, ये एक संगे मील है जिसको अबूर करना होगा। अगर ये इतना आसान होता तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले कर चुके होते। अब उन्हें क्योंकि आखिरी वक्त में ये करना है, तो ये भी एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो इसको कैसे पूरा करते हैं। इसराइल ने बहरहाल ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ अमेरिका के इशारे का इंतजार कर रहा है और वो बड़ी तबाही फैला सकता है। इसराइली वजीर दिफा का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अमेरिका की इजाजत मिलते ही खामनई के पूरे खानदान को हम खत्म कर देंगे। आयतुल्लाह खामनई किस हालत में इस वक्त, आयतुल्लाह अली खामनई तो शहीद हो गए हैं, जो मुज्तबा खामनई है वो किस हालत में है ये मैं आपको बताता हूं आगे चलकर। लेकिन इसराइल ने एक बार फिर ईरान को संगीन नताइज भुगतने की धमकी देते हुए अपनी अमेरिका के साथ दोस्ती का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने अगर हमें कहा, ये वजीर दिफा है इसराइल का, उसने कहा कि ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। ईरान को तारीकी और पत्थर के दौर में हम धकेल देंगे और आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई के पूरे खानदान को इस मर्तबा खत्म कर देंगे। हालांकि पहले ही ये खानदान आधा कत्ल हो चुका है। ज्यादातर लोग इस खानदान के जो मुज्तबा खामनई से जुड़े हैं वो शहीद हो चुके हैं। बाकी जो लोग बचे हैं उनमें मुज्तबा खामनई है। उनकी अपनी सूरत क्या है, इस पे मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पे इमरान खान साहब ने कहा कि यह बाइस तशवीश है। दो मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहां 3 नस्लों से मुकीम अफगान पनागजीनों को दहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क से निकाला गया, वो भी अफसोसनाक है। इधर तो मस्जिदों में ऐलान करवाए जा रहे हैं कि अफगानी आपके इलाके में कोई है तो निकाले उसको। तो अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम हमसाया मुल्क है। दहशतगर्दी से मुतालिक मामला बातचीत से हल किए जाएं। तारीख से साबित है कि डिक्टेटर्स कभी भी अमन नहीं ला सकते, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स को मिलिट्री सोल्यूशन के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। याया खान समेत तमाम डिक्टेटर्स की मिसालें हमारे सामने हैं। ये मामला सियासतदान मामला फहमी से हल करते हैं। अगर इनसे नहीं होता तो मुझे पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि देर पा अमन के क्याम और अफगानिस्तान से तनाजे के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकूं। इमरान खान तो कहते हैं यार आपसे नहीं होता ना, आप बातचीत से मसला हल नहीं कर सकते, मुझे पैरोल देकर रिहा करो। वो कोई रिहाई नहीं मांग रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे केसेस खत्म कर दे, कुछ और कर दे। वो कह रहे मुझे पैरोल पे छोड़े, मैं ये मामला निपटा के फिर वापस चाहे मुझे दोबारा पकड़ लिया। पैरोल की रिहाई यही होती है ना कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक मखसूस काम करने के लिए आप बंदे को छोड़ते हैं फिर वापस बंद कर देते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा जी आपसे नहीं हो रहा ना, मुझे पैरोल पे छोड़ो, मैं ये काम करके देता हूं और एक मुस्तकिल अमन कायम करता हूं। मुल्की हालात से मायूस होकर पहले ही 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क से तेजी से मल्टीनेशनल कंपनियों का इनखला जारी है। बैरूनी सरमायाकारी आना तो दूर की बात है, मुल्क के अंदर से भी सरमाया तेजी से बाहर जा रहा है। जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। खबर इसके साथ एक जोड़ता हूं, मैं इमरान खान साहब का बाकी स्टेटमेंट आपको बाद में बताता हूं। खबर यह है कि गूगल ने इंडिया में 15 अरब डॉलर की लागत से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मरकज बनाने का फैसला किया है। यानी वहां पे इंडियंस ट्रेंड होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोबा जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से आगे जा रहा है, वहां से इंडियन ट्रेन नौजवानों को पूरी दुनिया में भिजवाया जाएगा। तो गूगल वहां पे 15 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत में। तो भारत को पाकिस्तान से लड़ने की क्या जरूरत है? अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता रहे तो अफगानिस्तान की लड़ाई आपको पता है बड़ी लंबी होती है।
पाकिस्तान की हमारी फौज की मैक्सिमम लड़ाई जो है वो थोड़े अरसे तक की रहती है। यानी हमने जो जंगें लड़ी हैं 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1-1.5 हफ्ता, भाई इससे लंबी जंग हमने कभी लड़ी नहीं। अफगानों की जो सबसे छोटी जंग मुझे याद है वो भी 13 साल की है। फिर अभी उन्होंने कोई 18-20 साल की एक जंग लड़ी है अमेरिका के साथ 2 दहाइयों की, पूरा वो नेटो उसके अंदर शामिल था। तो वो आपके साथ एक लंबा पेचा डाल लेंगे, आप उनके साथ उलझते रहिएगा, कभी बॉर्डर पे, कभी बॉर्डर के अंदर, कभी बॉर्डर के उस तरफ। तो ये उनके साथ आपकी अगर लंबी लड़ाई चल पड़ती है तो इंडिया को तो आपसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो अपनी तरक्की करता जाएगा, आपको यहां उलझा के रखेगा, आप अंदर से कमजोर होते रहेंगे, आपकी इकोनॉमी कमजोर होती रहेगी, आपके ऊपर एक प्रेशर बनता रहेगा, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मदद नहीं होगी, और पाकिस्तान में अमन के क्याम के लिए आपको अफगानिस्तान के साथ बैठकर एक तरीकाकार बनाना पड़ेगा, जो बदकिस्मती से पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं कर रहे, सिर्फ अमेरिका को ऐसा लगता है कि शायद खुश करने के लिए। मुल्क में लाकानूनियत का यह आलम है। अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में रहते हुए ही गैर महफूज हैं, किसी को यह नहीं पता कि कौन कब सड़क पर मारा जाए या उठा लिया जाए। आजादी इजहार पर शदीद कदगन है, मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है। जिस तरह अलीमा खान पर बेजा मुकदमा बनाया गया, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया। नाजरीन, अब मैंने आपको बताया था कि पहला जो बड़ा टास्क होगा सुहेल अफरीदी के लिए वो होगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात कैसे की जाए। तो सबसे पहला जो काम किया, सुहेल अफरीदी ने आईजी को तलब किया, जो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी हैं। उन्हें बुलाकर पूछा कि सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा से कैसे अगवा हुए। अब ये काम तो अली अमीन गंडापुर को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन सुहेल अफरीदी ने एक तफसीली रिपोर्ट आज के दिन में जमा करवाने के लिए कह दिया आईजी खैबर पख्तूनख्वा को कि जमा कराओ जनाब रिपोर्ट, बताओ सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा से कैसे अगवा हुए। यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं ना, जो पश्तून लोग हैं, वो मेहमान नवाज लोग हैं, और मेहमानों के लिए तो वो जान भी देते हैं, मेहमानों का वो ख्याल भी रखते हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहा या बलूचिस्तान के कबायली इलाकों में रहा तो ज्यादातर मैं पश्तूनों के पास रहा हूं, और भी बाकी सबकी भी मुझे बड़ा एहतराम है। लेकिन वो लोग कहते थे कि हम मर जाएंगे, आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो मैं डर के बहुत सारी जगह छोड़ देता था कि मेरी वजह से इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को मुश्किल में मैं नहीं डालता था। तो ये इनका तो ये रवैया होता है पश्तूनों का। अब वहां से एक औरत उठाई जाए उनके पास से जो उनकी मेहमान है, तो ये सबसे पहला जो ऑर्डर दिया उसने ये दिया कि जनाब तफसीली रिपोर्ट आज के दिन में जमा करवाए आईजी खैबर पख्तूनख्वा। सुहेल अफरीदी के लिए जो बड़ा एक टास्क है वो इमरान खान से मुलाकात करना। गंडापुर साहब कहते थे कि मेरी मुलाकात हो नहीं पाती, लेकिन मैं इसमें मानता नहीं था कि गंडापुर साहब अगर चाहें और उनकी मुलाकात ना हो, क्योंकि उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे थे। लेकिन गंडापुर साहब ने लगातार कहा जी मेरी मुलाकात होने नहीं दी जाती। अब सुहेल अफरीदी आए हैं और मैं ये जानता हूं कि कोशिश की जाएगी कि इनकी मुलाकात ना हो, लेकिन एक वजीर आला ना मिल पाए ये मुमकिन नहीं है। जो घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, ये उसको टेढ़ी उंगली से निकाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के पास ऐसे 100 रास्ते हैं जिनसे वो इमरान खान साहब से मिल सकता है। दबाव कैसे डालना है, कैसे बढ़ाना है, अब जिस सीट के ऊपर सुहेल अफरीदी बैठे हैं वो सीट उन्हें खुद बताएगी कि किस तरीके से इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है। मुलाकात तो देखें एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होनी है, खासतौर पर इसकी इजाजत जो है वो कम से कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से आएगी। वफाकी और पंजाब दोनों हुकूमतों को, यानी चचा और भतीजी दोनों को मुरासला अरसाल कर दिया गया है और यह कहा गया कि मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। ये कोई इजाजत नहीं मांगी, उन्होंने आगाह किया है कि सुहेल अफरीदी आएंगे और आकर मुलाकात करेंगे। अब देखते हैं मुलाकात उन्हें करने दी जाती है या नहीं करने दी जाती। नाज़रीन, एक चीज देखें, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात को जानबूझकर खराब किया गया है और लगातार खराब किया गया है और प्लानिंग के साथ खराब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, इमरान खान साहब हों, फजल रहमान साहब हों, पीटीआई के लोग हों, अमन पासून के लोग हों, पीटीएम के लोग हों, अवाम हों, ताजिर हों, नौजवान हों, ये सब लोग चिल्लाते रहे, बार बार कहते रहे, खबरदार करते रहे कि ये जो काम किए जा रहे हैं इन घिनौनी हरकतों से खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो जाएगा, हालात बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि डेलिबरेटली ये सब कुछ किया गया और आज खैबर पख्तूनख्वा को वहां पहुंचा दिया गया है जहां हालात इंतहाई तशवीशनाक है और अफगानिस्तान के साथ भी हालात खराब कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथ लगातार जो ज्यादतियों का सिलसिला है वो तो जारी है। एक तो जो केस चल रहा है तोशाखाना 2, उसमें इमरान खान साहब के वकील ने कहा जज को कि जनाब समाअत जरा मुलतवी कर दें एक आधे दिन के लिए। उसकी वजह यह है कि 16 तारीख यानी आज के दिन में इमरान खान साहब का केस लगने जा रहा है 10 महीने के बाद, अलकादर वाला, जो उन्होंने अपील की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जनाब मेहरबानी करें, आप समाअत मुलतवी करें ताकि अलकादर वाले केस में जाके हम वहां पे काम करें, इमरान खान साहब को जमानत हो जाएगी। लेकिन गेम क्या डाली गई, अब पता चला जनाब के रात गए कि अलकादर केस के अंदर अपडेट ये आई कि समाअत मनसूख कर दी गई है। यानी 16 तारीख को जो समाअत होनी थी इमरान खान साहब की, वो समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मनसूख कर दी गई है। जबकि तोशाखाना 2 में फिर तारीख दे दी गई है कि जनाब इधर है। तो मैंने आपको पहले बताया था और बहुत पहले बताया था कि इमरान खान साहब को तब तक
अलकादर केस के अंदर जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि किसी दूसरे केस में उन्हें सजा नहीं हो जाती। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।